Hello everyone, welcome back to my channel. So last class we have studied till digestion till mouth. What happens to the food when we are eating? What happens exactly in our mouth? So just recapitulating, just revising what we have studied yesterday or in my last video you can check. I will give the link in the description box. So we have studied that the food is crushed. First the food is crushed in the mouth. Second, it is mixed with saliva. It is mixed with saliva and then it is wet. थोड़ा गीला होता है. It is wet. It is mixed with saliva and it is crushed. ठीक है. So these three things we have studied till yesterday, and now what is happening will continue with our NCERT book, as many people do not have access to different kind of guidebooks or reference book. So I will just explain whatever paragraph is there in your NCERT, and based on that you will understand your NCERT book more properly. So you open page number 99 of your NCERT book. So we have studied the first paragraph yesterday, and now we shall be continuing with the next paragraph. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contracts rhythmically in order to push the food forward. This peristaltic movement occur all along the gut. So all along the gut, this peristaltic movement. Yesterday or in the last video, I told you about the peristaltic movement. Generally, peristaltic movement occurs in the food pipe. जो हम लोगों का फूड पाइप है, फूड पाइप ऑल्सो कॉल्ड एज ओएसोफेगस और इसोफेगस, व्हाटएवर यू मे से. सो यहाँ पे पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट से फूड नीचे जाता है. इट ट्रेवल्स डाउन. द पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट इज एक्चुअली दिस zigzag गोइंग डाउन ऑफ द फूड. तो हाउ दिस zigzag मोशन ऑकर्स? दिस ऑकर्स बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द फूड पाइप. फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपांड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपांड होगा. उसी से क्या है, फूड नीचे चला जाता है, स्टमक में, माउथ से नीचे चला जाता है. सो फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप. सो इन फिगर 6.6 इन योर एनसीईआरटी बुक यू कैन सी द फूड ट्रेवल्स डाउन एंड गोज टू द स्टमक. So after mouth you have the food pipe and then the food falls down into the stomach. अभी स्टमक में कुछ क्रिटिकल ऐसा प्रोसेस, थोड़ा केमिकल चेंजेस होता है फूड का, दैट वी हैव टू नो एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी टाइम्स क्वेश्चन कम्स इन Assam State Board also. Question comes, what happens to the food in stomach? What are the chemical changes that occurs in stomach? So the food from the mouth, the food is taken into the stomach through the food pipe or oesophagus. The stomach is a large organ which expands when the food enters it. So basically from the mouth, this is the food pipe. The food comes down and falls in the stomach. So this is the stomach region. पेट जिसको हम लोग बोलते हैं, this part, this region. So यहाँ पे जब फूड गिरता है, here when the food falls down, so the stomach enlarges. तो enlarge होने का मतलब क्या है? It is also a kind of muscular organ. This is also a muscular organ. ये भी एक muscular organ है. क्यों? क्योंकि it is able to expand. थोड़ा बढ़ सकता है वो. It is able to stretch its size. So through the food pipe or oesophagus, the stomach is a large organ which expands when the food enters it. The muscular walls of the stomach helps in mixing the food thoroughly with the digestive juices. So in stomach we have got the digestive juices. We have got the digestive juices, जिसके साथ अभी जो फूड आया है मुंह से जो फूड आके स्टमक में गिरा है, द फूड which is travel down the mouth to the stomach, it will get mixed with the digestive juice. The digestive juice means these are the chemicals which will help in further breaking down the food. डाइजेस्टिव जूस में ऐसा कुछ केमिकल है, ऐसा कुछ एंजाइम्स है, कुछ एसिड, एक तरह का एसिड होता है, जिससे क्या होता है, जो फूड मुंह से यहाँ स्टमक तक पहुंचा है, इट विल हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन दैट फूड फर्दर. जो
आगे का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करेगा हम लोग का स्टमक. The digestion in stomach is taken care by the gastric glands which is present in the walls of the stomach. So very important, if you study the internal structure of the stomach, generally अंदर का जो wall है stomach का उसके अंदर रहता है gastric glands. Gastric glands stomach के अंदर रहता है gastric glands. पहला first point you have to remember, the stomach has got digestive juices. The stomach has got digestive juices पहला. Second, it has got gastric glands. It has got gastric glands. These two things you have to remember. Point wise we will study. Actually science, in science if you have to study properly, you have to go point wise. If you don't make points, you will not remember whatever you have studied. So it is better that you pin up some pages or some small cheats here, so that whenever you are studying for the exam, you will be able to study faster with the important points. No need to study the whole paragraph at that time. So the digestion in stomach is taken care with the help of gastric glands present in the walls of the stomach. These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin, and mucus. तो क्या होता है, these release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin, and mucus. So stomach से तीन चीज रिलीज हो रहा है. We are getting three things from stomach. First is it's one acid which is called as hydrochloric acid, HCl. It's a hydrochloric acid. Second, we are getting one enzyme called as pepsin. ये क्या काम करता है ये हम समझाएगा अभी. And why this acid is present, क्यों एसिड का ही क्यों काम है अंदर पेट का अंदर. And third, mucus. Third is mucus. So now you understand that this enzyme pepsin, ये जो enzyme pepsin है, it is only activated in presence of an acid. ये तभी ही काम कर पाएगा जब ये किसी एसिडिक एनवायरनमेंट में है, और वही एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है पेट के अंदर, अगर इट इज नॉट प्रेजेंट, देन पेप्सिन एंजाइम विल नॉट बी एबल टू फंक्शन. पेप्सिन का कुछ काम ही नहीं रह जाएगा तब. म्यूकस का क्या काम होता है? वी नो दैट दिस एसिड इज वेरी कोरोसिव. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी कोरोसिव इन नेचर. ये अगर कहीं हम लोग का हाथ में भी अगर पड़ता है बाहर से, इफ इट इज फॉलिंग डाउन इन आवर हैंड, देन इट मे कॉज बर्न. जला देगा हाथ को. किसी भी सरफेस में अगर गिरेगा तो जला देगा. इट इज सो मच कोरोसिव इन नेचर. तो इस स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने ऐसे बनाया है कि काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे. तो उसके लिए क्या किया है, God has given us another kind of liquid which is a mucus. ये mucus क्या करता है? It protects the stomach. Sometimes we complain about acidity, खट्टा डकार, या पेट में जलन, या it's a very irritation around the or inflammation around the chest area. It is only due to excess secretion of acid in our stomach. जब acid का level बढ़ जाता है तब क्या होता है, हम लोगों को इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी में जलन होता है, पेट में खट्टा डकार आता है. तो दैट इज एक्चुअली गैस्ट्राइटिस. वो एक बीमारी है. तो उसका अलग से भी एक पार्ट है, एसिड बेस्ड सॉल्ट में भी मिलेगा. उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या थोड़ा बेस खाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो. ये सब हम लोग पीते हैं. जेलोसिल एंटासिड्स बोलते हैं उसको. सो वो धीरे धीरे हम आएंगे जब हम एसिड बेस्ड सॉल्ट जब पढ़ेंगे, उस टाइम उसको मैं पढ़ाऊंगा. तो गैस्ट्रिक, इसमें स्टमक में तीन चीज है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेप्सिन को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन काम कर पाए उन फूड्स पे जिनको वो फर्दर डिग्रेड और डिसइंटीग्रेट करेगा या डाइजेस्ट करेगा. एंड म्यूकस, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो तीनों अपनी अपनी जगह पे काम करेंगे. So these release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme. So pepsin क्या करता है? It is a protein digesting enzyme. दूसरा कुछ फूड को वो डाइजेस्ट नहीं करेगा. किसको डाइजेस्ट करेगा? It will digest only protein. It will digest protein. अभी हम लोग पहले भी मैंने कल बोला था या लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि
जो भी एंजाइम है हम लोग का, दोज आर स्पेसिफिक इन नेचर, लॉक एंड की। अभी एक ताला जो है वो एक ही चाबी से खुलेगा, दूसरा किसी चाबी से वो खुलेगा नहीं। उसी तरह एंजाइम के साथ भी यही है, लॉक एंड की मैकेनिज्म। जो एक एंजाइम है वो एक ही फूड सब्सटेंसेस के ऊपर काम करेगा। अगर वो कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडिंग एंजाइम है तो वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही काम करेगा, प्रोटीन के ऊपर काम नहीं करेगा। अगर वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो वो प्रोटीन के ऊपर ही काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर या फैट्स के ऊपर इट विल नॉट वर्क। So these release hydrochloric acid, the hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin। तो मैंने बोला जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें ये पेप्सिन, प्रोटीन जो प्रोटीनेशियस जो फूड हम लोगों ने खाया, कभी चिकन खा लिया, कभी एग खा लिया, कभी कुछ खा लिया, आजकल तो बॉडी बिल्डिंग का ज़माना है तो प्रोटीन ज़्यादा खाना होता है, तो उसके लिए ये पेप्सिन बहुत ज़रूरी है बॉडी में। तो पेप्सिन अगर कम है तो प्रोटीन खा के कोई फायदा नहीं है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। What other function do you think is served by the acid? दूसरा एक फंक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन तो दे दिया, आंसर नहीं दिया, बट दूसरा और एक फंक्शन है। कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स वी ईट एक्सीडेंटली, जानबूझ के तो खाएंगे नहीं ये सब, एक्सीडेंटली वी ईट सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच वी कैन नॉट सी। फूड में है, कभी भी फुचका खा लिया या कुछ खा लिया, गोलगप्पा खा लिया या समोसे खा लिए, कुछ भी जब हम लोग खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ माइक्रोब्स भी रहते हैं व्हिच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई। तो उन सब माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए और टू किल दोस माइक्रोब्स दिस एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एसिड नहीं है तो वो फिर माइक्रोब्स उभरता रहेगा बॉडी में, वो पनपता रहेगा, कुछ और डिजीज क्रिएट कर देगा। सो ये दूसरा और एक फंक्शन है एसिड का। तो दो फंक्शन है एसिड का, वी हैव स्टडीड टू फंक्शंस आर देयर ऑफ एसिड। फर्स्ट इज the creating an environment for pepsin so that it can act on the protein, and second is killing the microbes which we are eating accidentally or without our notice. So the mucus protects the lining of the stomach from the action of acid under normal condition. तो नॉर्मल कंडीशन जब होता है, जब कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं, जनरली तो पूरे दिन कुछ ना कुछ डाइजेस्ट होता ही रहता है बॉडी में। एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग कुछ खाते हैं, वो खाना करीब 2 से 2.5 घंटा पेट में रहता है इन द स्टमक। धीरे धीरे वहाँ पे डिसोल्यूशन चलता रहता है उसका। ऐसा नहीं है कि साथ ही साथ खा लिया 15 मिनट में हजम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट स्टेज इन द स्टमक। यू हैव टू रेस्पेक्ट द बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट गॉड हैज गिवन अस। ये नहीं है कि अभी खा लिया, अब थोड़ी देर बाद भूख लग गया था इसका मतलब सारा खाना हजम, ऐसा नहीं होता है। ये रहता है बॉडी में। भूख लगना इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी और इट्स अ डिफरेंट थिंग। एक न्यूरोलॉजिकल सिग्नल होता है, ब्रेन भेजता है हम लोग। सो द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबव? यस ऑफ कोर्स। तो अभी एडल्ट्स के अभी तो सब लोगों में होता है, बच्चे बच्चे को भी होता है, क्योंकि खाना ही ऐसा है आजकल। तो क्या होता है एसिडिटी? एसिडिटी मतलब क्या? जो नॉर्मल जो एसिड का लेवल है बॉडी में, सपोज बॉडी में एसिड का लेवल इतना चाहिए, कभी क्या होता है वो बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है खट्टा डकार या जलन पेट में, जो मैंने पहले भी बताया, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। सो दैट इज एसिडिटी, दैट इज व्हाट? एसिडिटी। तो उसके लिए हम लोग जेलोसिल वगैरह, इनो वगैरह खाते हैं। The exit of food from the stomach is regulated by its sphincter muscle which releases it in a small amounts to the small intestine। अभी स्टमक का कहानी खत्म हो गया, तो अभी क्या होता है नेक्स्ट जो ऑर्गन है, नेक्स्ट जो ऑर्गन है जहाँ पे फूड ट्रैवल करेगा, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ से फूड विल डायरेक्टली ट्रैवल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। So food will travel into the small intestine here। तो अभी small intestine में क्या changes होता है? Before that, अगर ये पूरा समझ में आ गया है तो you can take screenshot of this or you can write it down while seeing the video। You take your textbook, आप लोग अपना किताब ले लीजिए और फिर देखते रहिए वीडियो को, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, then you will understand better। So the exit of food from the stomach is regulated by its sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine। From the stomach the food now enters the small intestine। This is the longest part of the alimentary canal। कभी अगर क्वेश्चन आ जाए which is the longest part of the alimentary canal, so you have to say
the stomach, sorry, the large intestine is the longest part of the alimentary canal. Sorry, the small intestine is the, क्या हो गया पता नहीं, the small intestine is the longest part of the alimentary canal. बहुत लंबा होता है. Coiling क्या हुआ रहता है, it is totally coiled like this. ऐसे पूरा कॉइलिंग किया हुआ रहता है ये. सो अगर इसको खोल दो हम लोग तो ये बहुत ही लंबा बन जाता है. तो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling. बहुत ही ज़्यादा coiling है, इसलिए compactly पैक करके इसको अंदर घुसाया जाता है. घुसाया जाता है क्या, ये तो भगवान ही डालता है, इसको हम लोग कौन आते डालने वाले. The length of the small intestine differs in various animals. So जो small intestine का जो length है वो differ करता है अलग अलग animals में. Human beings में थोड़ा छोटा है, काऊ बफेलो में थोड़ा सा बड़ा है या छोटा है. सो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग लेंथ का होता है ये. द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट. हार्बीवरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन. आई टोल्ड यू हार्बीवरस जैसे कि काऊ है या गोट है या डियर है, जनरली डोमेस्टिक एनिमल जो भी है हार्बीवरस मतलब ग्रीन प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स या ग्रास ईटिंग एनिमल्स ऑल्सो यू कैन से. सो वो लोगों में स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी मच लॉन्गर, लंबा, बहुत ही ज़्यादा ही लंबा है, क्योंकि फाइब्रेशियस फूड खाते हैं वो लोग. और फाइब्रेशियस फूड को हजम करने के लिए यू नीड अ लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन. ये लॉन्ग स्मॉल में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी. Herbivorous eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. क्योंकि उसमें green plants में ज़्यादातर cellulose होता है, तो उसको digest करने के लिए the small intestine, the length of the small intestine has to be little bit larger. Meat is easier to digest. ये बहुत पहले ये सोचा जाता था कि जो प्रोटीनेशियस फूड है या चिकन मीट आप बोल लीजिए, उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी दिक्कतों को झेलना होता है बॉडी को. लेकिन आज ऐसा नहीं है. बहुत सारे ऐसे स्टडी हो गए हैं जिसमें ये प्रूव हो गया कि जो प्लांट बेस्ड जो फूड है उसको हजम करने के लिए जितना जद्दोजहद करना होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, चिकन एग दोज आर कंपैरेटिवली इजीली डाइजेस्टेड. वो सब बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. तो पहले हम लोग सोचते मतलब बड़े बुजुर्ग जो है घर पे बोलते थे कि सब्जी खा लो ज़्यादा, या ये खा लो वो खा लो, चिकन अंडा फिश ये सब मत खाओ. और आजकल ऐसा नहीं है. आजकल ये चिकन अंडा फिश जल्दी हजम हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑल दोज वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग. बट वेजिटेबल्स इज वेरी, आई एम नॉट अगेंस्ट वेजिटेबल. यू हैव टू ईट वेजिटेबल इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट प्रोटीन अगर खा रहे हैं हम लोग, उसको हजम करने के लिए वेजिटेबल्स का खाना बहुत ज़रूरी है. बिना वेजिटेबल्स खाए प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में. Meat is easier to digest, hence carnivorous like tiger have shorter small intestine. The small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, proteins and fat. अभी small intestine में complete जो भी food हम लोगों का मुंह से लेके अभी तक पहुंचा है वो completely digest होता है small intestine. अभी देखिए we have completed protein तो थोड़ा बहुत digest हो गया stomach में, जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट था वो भी डाइजेस्ट हो गया, लेकिन फैट्स अभी तक डाइजेशन हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया. फैट्स डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक. इफ यू हैव फॉलोड व्हाट आई टोल्ड यू, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ स्टमक में, कार्बोहाइड्रेट्स जो मुंह में था सेलिवरी एमाइलेज ने उसको ब्रेक किया. लेकिन फैट्स का क्या है, फैट्स को तो अभी तक किसी ने छेड़ा भी नहीं है. तो दैट द डाइजेशन ऑफ फैट्स विल ऑकर नाउ. कैसे अभी देखते हैं. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. So we can say that the small intestine, if this is the small intestine, it is connected to two different organs. दो अलग organ से attach होता है ये. पहला तो है आपका liver, first is your liver and second is your pancreas. pancreas या pancreas कुछ भी बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. pancreas और pancreas and liver. So दो चीज से small intestine is getting connected. तो इतना अगर डायग्राम
You draw and practice, but generally पढ़ने के लिए you need not draw the diagram. आप लोग ऐसे करके भी पढ़ सकते हो. You can write small intestine here. There is no problem. So small intestine is connected to two different organs, that is liver and pancreas. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzyme to act. अभी क्या है, स्टमक से जो फूड हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टमक में जो जितना भी डाइजेशन हुआ है, कौन किया है डाइजेशन, किया है हम लोग का पेप्सिन एंजाइम. अच्छा, पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए क्या एनवायरनमेंट चाहिए था, एसिडिक. तो फूड क्या हुआ, वहां पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था उससे तो मिक्स हो गया. तो उससे मिक्स होते ही क्या हो गया, फूड विल बिकम एसिडिक. फूड तो एसिडिक हो गया. अभी ये एसिडिक फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को समझ में नहीं आता कि क्या करें. अभी एसिडिक फूड को तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि स्टमक से जो फूड आया है एसिडिक है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अनेबल टू डाइजेस्ट दैट एसिडिक. सो व्हाट टू डू, और नाउ द मेन कैच इज देयर. अभी क्या होता है देखिए. So food coming from the stomach, you have to write here acidic food is coming from stomach. Acidic food coming from stomach. Coming from stomach. ठीक है, कैसा फूड, acidic food. Acidic food coming and falling into the small intestine. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline. So opposite, acidic का opposite होता है alkaline. तो alkaline बनाना होगा उसको. For the pancreatic enzyme to act. So pancreas से जो एंजाइम जाएगा वो एल्कलाइन मीडियम में ही काम कर पाएगा, एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर पाएगा. एसिडिक मीडियम में सिर्फ स्टमक का जो एंजाइम है वो काम करता है. यू रिमेंबर दिस, डोंट गेट कंफ्यूज. स्टमक में जो एंजाइम है पेप्सिन, दैट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम. अभी पेनक्रियास जो एंजाइम देगा स्मॉल इंटेस्टाइन को, या पेनक्रियास का जो भी एंजाइम है वो काम करेगा एल्कलाइन मीडियम में, ऑपोजिट ऑफ एसिडिक. तो पर फूड जो आया है वो तो एसिडिक है, तो पेनक्रियास का एंजाइम कैसे काम करेगा, तो दैट विल नो. चलिए देखते हैं आगे. The food coming from the stomach is acidic and has to make alkaline for the pancreatic enzyme to act. Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fat. अभी क्या करेगा, लीवर इसमें हेल्प करता है पेनक्रियास को, या स्मॉल इंटेस्टाइन को बोले. लीवर क्या करता है, बाइल जूस भेजता है. लीवर सेंस बाइल जूस. तो बाइल जूस इज एल्कलाइन इन नेचर. बाइल जूस क्या करता है, जो भी फूड आया है यहां से, चलो अभी मैं इसको एल्कलाइन करता हूं, तो ये हीरो बन के आ जाता है बाइल जूस, इसमें हीरो बन के आ गया, और एसिडिक फूड को इसने एल्कलाइन बना दिया. फिर बुलाता है, आओ पैनक्रियाटिक एंजाइम तुम अपना काम कर लो. पहले ये जाता है लीवर से बाइल जूस आके फूड को स्टेबल करेगा, एल्कलाइन बनाएगा. उसके बाद पैनक्रियास को बोलेगा कि आ जाओ पैनक्रियास बेटा तुम्हारा एंजाइम दे दो और इसको फूड को डाइजेस्ट करो. Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for the enzymes to act. Bile salt breaks them down into smaller globules increasing the efficiency of enzyme action. So bile juice और एक दूसरा चीज जो liver भेजता है that is bile salt. That is bile salt. ये bile salt destroys और ब्रेक्स डाउन दी फैट्स. जो भी बड़ा बड़ा फैट का जो पार्टिकल्स है उसको छोटा छोटा में कन्वर्ट करता है ये बाइल सॉल्ट लिवर. इसलिए लीवर का जो जब भी डिजीज होता है हम लोगों को, जॉन्डिस हो या कुछ भी हेपेटिक डिजीज बोलते हैं उसको, तो whenever we are having hepatic disease at that time we are advised not to have any kind of fats. कोई भी तेल या कुछ भी खाना, जॉन्डिस में भी तेल खाना हम लोगों को बंद करवा दिया जाता है क्योंकि the liver is not able to function at that time properly. So therefore we are advised to stop consuming fat substances. So next we see bile salt break them down into smaller globules increasing the efficiency of the enzyme action. This is similar to the emulsifying action of soap on dirt that we have learned in chapter 4. So I will teach chapter 4, तब पता चल जाएगा emulsification या emulsifying of action of soap क्या होता है. The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzyme like trypsin for digesting protein
एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट। अभी पहले पैनक्रियास से जो एंजाइम आता है लिपेज, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लिपेज से क्या होता है, एज वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट ने क्या किया, फैट्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स और स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया, ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया। अभी फिर पैनक्रियास से और एक एंजाइम जाएगा जिसका नाम है लिपेज, जिसका नाम होता है लिपेज। ये लिपेज क्या करेगा, इसको और छोटा कर देगा, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स को और ऐसे कर देगा ताकि ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए, एब्जॉर्बेबल कंडीशन में कर देगा इसको। लिपेज स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स को एब्जॉर्बेबल कंडीशन में कर देगा, ठीक है। अभी दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन। जो भी आधा अधूरा प्रोटीन डाइजेस्ट होके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था, उसको फिर डाइजेस्ट करेगा ट्रिप्सिन, उसको डाइजेस्ट करेगा ट्रिप्सिन, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने 3 एंजाइम पढ़ लिए हैं इसमें। पहले स्टमक में था पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अभी यहाँ पे फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है लिपेज, ठीक है, पहले। और एक था बाइल सॉल्ट, जो बड़ा फैट मॉलिक्यूल्स को छोटा फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। आई विल मेक ए डिटेल वीडियो ऑन दिस, कौन सा एंजाइम किसके ऊपर काम कर रहा है, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी जो टेक्स्ट में है वो समझ लेते हैं पहले। सो पैनक्रियास से दूसरा और एक एंजाइम ट्रिप्सिन जाता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उसमें। दूसरा और एक एंजाइम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो थोड़ा बहुत जो भी कार्बोहाइड्रेट का बचा कुचा अनडाइजेस्टेड पार्ट था उसको भी डाइजेस्ट करता है। सो जनरली पैनक्रियास 3 तरह का एंजाइम रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, लिपेज एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज। The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. This enzyme present in it finally convert the protein to amino acids, complex carbohydrate into glucose and fats into fatty acid. ये बहुत जरूरी है। The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. अभी यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन काम करेगा। अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन ने कुछ काम नहीं करा है। हम लोगों ने देखा है कि लीवर हैज डन इट्स वर्क बाय गिविंग बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। पैनक्रियास हैज गिवन 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? ये तो डब्बा तो नहीं हो सकता, अगर भगवान ने इतना बड़ा कुछ बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली ब्रेक्स डाउन जो भी बचा कुचा सब्सटेंसेस है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन्स एमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, तो उसी कन्वर्शन को लास्ट तक पूरा करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसी जो कन्वर्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का, वो उसको फाइनल टच कौन देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। So the enzyme present in it finally converts the proteins to amino acids, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acid and glycerol. Digested food is now taken up by the wall of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called as villi, which increases the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up of new tissue and repair of old tissue. अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया जो भी डाइजेशन था, प्रोटीन्स एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फैट्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, the walls of the small intestine has got finger like projections. यहाँ पे लिखा है it has got finger like projections. So small intestine का जो भी wall है, small intestine में क्या है आपका, you have got finger like projections, finger like projections, इस तरह का finger like projections रहता है। ये सब finger like projections में like this they are richly supplied with blood vessels. पतला पतला blood vessel रहता है। उससे क्या होता है कि जो भी फूड डाइजेस्ट होके अपना जो लास्ट जो सब्सटेंस बनना है, जो बन गया, जैसे प्रोटीन बन गया, एमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट बन गया, ग्लूकोज, और फैट्स बन गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो इनको एब्जॉर्ब करेगा, इनको सारा ये सब एब्जॉर्ब करेगा। सो इनके अंदर चला गया, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, फिर पूरा बॉडी में ट्रैवल होगा, जहां भी जरूरत है वहीं पे ये लोग छोड़ के आएंगे इसको।
The villi are richly supplied, और villi कुछ भी बोल लो इसको. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissue and repair of old tissue. जो फूड का जो काम है वही करेगा ये, building up old tissue, repairing old tissue, growth and development, energy giving, ये सारा काम यहाँ से होता है. तो मेन ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रीसीडिंग सेक्शंस में. वो है ट्रांसपोर्टेशन का काम वो करता है ब्लड और ब्लड वेसल, हार्ट, ये लोग करते हैं. तो वो एक अलग ही कैटेगरी हो गया, अलग ही चैप्टर बन जाता है उसका अलग से. ट्रांसपोर्टेशन वो है लाइफ प्रोसेस में, दैट विल स्टडी. तो हम लोगों को ये समझना है कि लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो भी ये सारा था इसको कन्वर्ट कर दिया, फिर एब्जॉर्प्शन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में. कैसे? वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से विली जिसको बोलते हैं और वाइली जिसको बोलते हैं, वहाँ वाइली में you have got some blood vessels, very numerous dense network of blood vessels. वहाँ पे absorption चलता है. जो भी ये अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, ये लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे वहाँ पे, फिर ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर ब्लड से ट्रैवल होकर पूरे बॉडी में जाएगा जहाँ भी जरूरत है. The unabsorbed food is sent to the large intestine where its wall absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body via anus. The exit of this waste material regulated by anal sphincter. तो यहाँ पे जितना एब्जॉर्प्शन होना था हो गया. बाई चांस एक्सीडेंटली अगर थोड़ा सा फूड, चलो मान लेते हैं कि लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो पार्ट है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, चलो मान लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी चला गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होगा. वहाँ पे भी जितना थोड़ा बहुत बचा है, वाटर बचा है या कुछ भी मटेरियल बचा है, दोज थिंग्स विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड आफ्टर दैट इट विल बी जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स जिसको हम फिशेस बोलते हैं, वो एनस से, रेक्टम थ्रू एनस से निकल जाएगा. सो दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम. So starting from the first scratch, if you, what I told you, just recapitulating what we have studied in our last video and today's video also. Those who haven't watched the earlier video, you may go ahead and watch. I will give the link in the description box. So food, three types of food: protein, carbohydrate, fats, except those minerals which we are eating. And then the proteins are converted into amino acids, carbohydrates into glucose, and fats into fatty acid and glycerol. After that हम लोग खा रहे हैं खाना मुंह में जा रहा है. फिर मुंह में क्या हो रहा है हम लोगों का? We are chewing the food, we are breaking down the food, we are mixing the food with saliva. उसमें और एक काम होता है कि सलाइवा में एक एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेस, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ब्रेक करता है. फिर उसको मिक्स करेगा, वेट करेगा, अंदर से जाएगा, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट. आई एम टेलिंग यू द की पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम. फर्स्ट माउथ में क्या हो रहा है? क्रंचिंग, वेटिंग, ब्रेकिंग ऑफ द स्टार्च फूड. देन इट ट्रेवल्स डाउन द और फूड पाइप से नीचे जाएगा ओएसोफेगस से विद पेरिस्टालिसिस मूवमेंट और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से नीचे रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन से नीचे चला जाएगा. कहाँ जाएगा? स्टमक में. स्टमक में क्या होता है? तीन चीज होता है स्टमक में, तीन चीजें रहते हैं वहां पे. देयर इज hydrochloric acid, there is an enzyme called pepsin, and there is another liquid called as mucus. Hydrochloric acid provides an acidic medium for the enzyme pepsin. Pepsin वर्क किसके ऊपर करता है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन के ऊपर ही काम करेगा. अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको एनवायरनमेंट देता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए. म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, एंड ऑल्सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रेजेंट है वो दैट किल्स बैक्टीरिया. सेकेंड, वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत डाइजेशन होना था हो गया स्टमक में. देन इट फॉल्स डाउन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज अटैच टू लिवर एंड इट इज अटैच टू पैनक्रियास. लिवर से दो चीज आता है, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट. बाइल जूस प्रोवाइड्स द पैनक्रियाटिक एंजाइम, एनवायरनमेंट फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट. और बाइल सॉल्ट क्या करता है? जो भी बड़ा बड़ा फैट ग्लोब्यूल्स है, बड़ा बड़ा फैट मॉलिक्यूल्स है, उसको तोड़ के इट कन्वर्ट्स इनटू स्मॉलर fat molecules or smaller particles. Then the pancreas releases enzyme जो है trypsin. It works on protein, it digests the protein. Second, lipase, it digests the fats. और lipase नाम जो है लिपिड से आया है जिसका मतलब होता है फैट्स. So lipase digest fats. एंड देन यू हैव गॉट अनदर जो अब बुक में मेंशन नहीं है, पैनक्रियाटिक एमाइलेस, जो कार्बोहाइड्रेट का जो भी पार्ट है उसको डाइजेस्ट, थोड़ा बहुत जो बचा है उसको डाइजेस्ट करता है. उसके बाद स्टमक लास्टली इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे कि जो भी बचा कुचा
अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो पूरा डाइजेस्ट होकर प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे एब्जॉर्प्शन चलता है, कैसे? वाइली से एब्जॉर्प्शन चलेगा, वाइली पूरा ले लेगा जो भी ये सब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, फिर ब्लड में ट्रैवल करते रहते हैं वो लोग, ठीक है। फिर वहाँ से खाना चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी यहाँ अगर लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत अगर यूजफुल खाना चला गया, यूजफुल मटेरियल चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन फिर इसको एब्जॉर्ब करेगा और बाकी जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो एनस से निकल जाते हैं। सो दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, एंजाइम को याद रखने के लिए कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल एंजाइम है? यू सी दैट इन द एंड इट हैज गॉट ASE। अगर लास्ट में ASE लिखा रहता है, ASE, तो इसका मतलब है वो सब्सटेंस एक एंजाइम है। जैसे आप लोग कोई भी एंजाइम ले लीजिए, लीपेस, यू सी लीपेस, LIPASE। सो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये है लीपेस। एमाइलेज, यू सी एमाइलेज, लास्ट में है ASE, ठीक है। ऐसे बहुत अगर आपको मिलेंगे जिसमें ASE है लास्ट में, इसका मतलब एक दो ही होगा कि जिसमें ASE लगा नहीं है, बाकी हर एक एंजाइम में ASE लगा हुआ है। It has got ASE in the end, so that means it is an enzyme. I hope you have liked the video. So I will be continuing with the next part, which is respiration, in my next video. Till then, thank you everyone.